Dear students, good morning and Jai Hind. My dear kids, actually we are discussing mineral nutrition and in the last class we have discussed till hydroponics. हम लोगों ने बच्चों मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में अभी तक बस जनरल चीजों को देखा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को समझा है कि जो भी मिनरल्स प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं उनमें से आपको पता ही है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन they absorb through air and water. Through air they trap the carbon dioxide for photosynthesis, and in this way they get carbon and oxygen. And through their root hairs, plants absorb H2O, that is water, and in this way they get hydrogen and oxygen. So I am telling you children that carbon, hydrogen and oxygen, three elements, plants just absorb through the air and water. एंड रिमेनिंग 14, क्योंकि मैं कुल 17 बताया था आपको, अगर याद हो आपको लास्ट क्लास में मैंने कुल 17 न्यूट्रिएंट्स बताया, तो तीन ये निकाल दें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, देन रेस्ट 14 न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग डिवाइडेड on the basis of their requirement, not on the basis of their size. Children, please note this thing, on the basis of their requirement. If the nutrients are required in larger amount for the growth and development of plant, then it is said to be as macronutrients. हम लोगों ने देखा भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, these are the macronutrients. And if the nutrients are required in traces in a small amount for the growth and development of plant, then it is said to be as micronutrients. We have seen iron, cobalt and boron. We have seen the manganese. We have seen the manganese, chlorine. Okay, so these are the micronutrients in fact. And then we have seen the started in fact hydroponics. Children, hydroponics is a special kind of science in which plant grows just in water medium containing nutrients, not the soil, water medium containing nutrients. और अभी आप आगे जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा तो उसमें जूलियस वॉन सैच का नाम सुनेंगे बच्चों, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए वर्क किया, लाइट की एसेंशियलिटी को और भी फोटोसिंथेसिस में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में कई चीजें की जूलियस वॉन सैच ने। तो उन्होंने ही हाइड्रोपोनिक्स को भी खोजा था बच्चों। देख रहे हैं आप यहाँ पर Julius von Sach, German botanist in 1860, that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. ध्यान दीजिएगा कि सॉइल से चूंकि प्लांट्स को मिनरल्स मिलता है, अगर हम मिनरल न्यूट्रिशन कराते हैं वाटर के थ्रू तो तब भी प्लांट ग्रो कर जाएंगे। तो यहाँ पर जर्मन बॉटनिस्ट जूलियस वॉन सैच ने बताया कि प्लांट कुड बी ग्रोन टू मेच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन in complete absence of soil, that is hydroponics. इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं बच्चों, जबकि विदाउट सॉइल, ध्यान दीजिएगा, विदाउट सॉइल हम केवल वाटर मीडियम में न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाकर और फिर प्लांट को ग्रो कराते हैं बच्चों। मेथड इन्वॉल्व्स ग्रोइंग प्लांट्स इन प्यूरिफाइड वाटर एंड स्पेसिफिक मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट्स। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इज एरेटेड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। जाहिर सी बात है, अगर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर ऑप्टिमम ग्रोथ भी तो होना चाहिए बच्चों, और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि एरेटेड किया जाता है। जब एरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑप्टिमम ग्रोथ भी हो सकेगा। ओके, सो माय डियर किड्स, you are seeing here various kind of process technology related to mineral nutrition, and let us discuss the critical concentration. Okay, the method involves growing plants in purified water and specific mineral nutrient salts. Nutrient solution is aerated, मैंने बताया, and for the optimum growth and concentration required is determined एडिंग और रिमूविंग मिनरल न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको एक क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि मिनरल न्यूट्रिशन की एसेंशियलिटी कैसे डिफाइन करते हैं। दैट इज क्राइटेरिया एब्सोल्युटली नेसेसरी, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड, मिनरल्स आर स्पेसिफिक, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन metabolism, and on the basis of requirement we have seen children that nutrients are bifurcated into macronutrients, large requirement, and micronutrients, traces requirement. So my dear kids, what is the toxicity?
and what is critical concentration. These are the two important things related to mineral nutrition. So please see here. As we know that micronutrients are required in low amount. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैक्रो और माइक्रो वर्ड जो है वह साइज के बेसिस पर नहीं है बच्चों, बल्कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पर है। जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कम है वह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है चिल्ड्रन। ये डिक्रीज डिफिशियंसी, मॉडरेट इंक्रीज टॉक्सिसिटी। अगर कम हो जा रहा है तो डिफिशियंसी है, अब अगर इंक्रीज कर जा रहा है तो टॉक्सिसिटी करेगा। तो जिस लेवल तक प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है एक ऑप्टिमम, उसके बाद उस ऑप्टिमम लेवल को क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहा जाता है। एनी मिनरल concentration in tissue that reduces the dry weight of tissue by about 10% is considered as toxic। ध्यान दीजिएगा, जबकि मिनरल्स के होने की वजह से अगर प्लांट्स के ड्राई वेट या टिश्यू को समझ लीजिए, प्लांट के टिश्यू का ड्राई वेट में 10% तक की कमी आने लग रही है तो दैट इज सेड टू बी एज टॉक्सिसिटी। You know very well that above critical concentration level of minerals can create toxicity. So critical concentration vary and toxicity level vary with different plants। समझ सकते हैं आप बच्चों, जितने भी मिनरल्स हैं हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इसीलिए हर प्लांट के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन भी अलग अलग डिसाइड किया गया है बच्चों। इसीलिए आपने यहाँ पर देखा कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी एंड टॉक्सिसिटी लेवल आल्सो वेरी विथ डिफरेंट प्लांट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि एक्सेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। एग्जांपल मैग्नीज, मैग्नीज अगर अपने क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी। और आपने यह भी देखा कि टॉक्सिसिटी को डिफाइन करने के लिए क्या तरीका है। अगर प्लांट टिश्यू का जो वेट है, ड्राई वेट, अगर वह 10% तक रिड्यूस हो जा रहा है ड्यू टू द अकरेंस ऑफ एनी मिनरल, देन इट इज सेड टू बी एज टॉक्सिसिटी। ओके चिल्ड्रन, ओके नाउ सी हियर द नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स। नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुल 17 मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की प्लांट को जरूरत पड़ती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उनमें से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, डिफरेंट स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि मिनरल न्यूट्रिशन है क्या एक्चुअली। तो देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, दीज आर फाउंड इन एयर एंड वाटर। यू नो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O दैट इज वाटर। तो एयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल जाता है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है CO2, and they assimilate carbon dioxide to fix C6H12O6, that is glucose children. So non-mineral nutrients are carbon, hydrogen and oxygen, and these are found only in air and water. So plants, there are 13 nutrients in fact, okay, 13 mineral nutrients, these are grouped in micro and macro। और उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि आयरन इज द मोस्ट रिक्वायर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और वहां पर क्लोरीन को लेकर तो कुल 14 हो जाएंगे बेसिकली। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे उनको बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर इन मिनरल्स का रोल कहां पर है। ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन सब का एब्जॉर्बल फॉर्म और इन सब का रोल हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों। आप देखें अगर एनसीईआरटी में तो लाइन से सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्बल फॉर्म और प्लांट्स के अंदर उनके रोल को, उनके सेलुलर कंपोजिशन में और उनके फिजियोलॉजी में, मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है मिनरल्स का, या लाइन से दिया हुआ है। और हम लोग एक एक मिनरल का रोल डिस्कस करेंगे। बट बाय दिस चार्ट लेट अस डिस्कस द केमिकल सिंबल, रिलेटिव परसेंटेज इन प्लांट्स एंड फंक्शन इन प्लांट, कि किस मिनरल का क्या केमिकल सिंबल है जो आप पहले से ही जान रहे हैं, और रिलेटिव परसेंटेज इन प्लांट्स कि प्लांट्स में कितना परसेंटेज है इनका रिक्वायरमेंट का, एंड फंक्शन। ओके, मैंने पहले ही बताया कि कुल 17 अगर ले लिया जाए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और बाकी इनको, तो पूछता है कि मोस्ट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, देन यू विल से नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया है। दीज मिनरल्स आर बेसिकली एब्जॉर्ब्ड थ्रू द एयर एंड वाटर। सो you are seeing here the primary macronutrients। macro, you know macro means larger amount में उनका रिक्वायरमेंट होता है। 3 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और बाकी के 3 कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर।
तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सब सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं बच्चों। आयरन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आयरन एक ट्रांजिशनल स्टेट में रहता है माइक्रो और मैक्रो के बीच में, लेकिन जानते रहिए आप आयरन को कहा जाता है मोस्ट रिक्वायर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो लेट अस सी द सिंबल एंड रिलेटिव परसेंटेज and function in plants. Nitrogen you are seeing 100%, relative percent in plant is 100%. फंक्शन जरा देखते हैं इसका। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन प्रोटीन का भी पार्ट है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, और अमीनो एसिड में जो है अमीनो टर्मिनल होता है। तो अमीनो टर्मिनल जहाँ पे NH2 टर्मिनल है वहां पर नाइट्रोजन है। अमीनो एसिड में बता ही रहा हूँ, अमीनो टर्मिनल NH2 दैट इज नाइट्रोजन। न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेसेस, डीएनए और आरएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस है बच्चों, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एंड इन आरएनए थाइमिन के प्लेस पर यूरासिल। तो दीज आर द नाइट्रोजनस बेसेस। यू आर सीइंग हियर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे आप, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द कैटलिस्ट एंड इन आयन ट्रांसपोर्ट। सो यू आर सीइंग हियर बेसिकली नाइट्रोजन के लिए प्रोटीन और अमीनो एसिड एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में भी मैंने बताया था आपको। अब देखिए ये सारे एलिमेंट्स आपको फास्फोरस में भी नजर आएंगे। तो फास्फोरस में बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और एटीपी में रोल इसका है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन का जो मेन रोल प्रोटीन और अमीनो एसिड मैंने बताया आपको बायोमॉलिक्यूल्स में। फास्फोरस यू आर सीइंग हियर चिल्ड्रन, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस भी रहता है। अभी आपको याद होगा मैंने नाइट्रोजन को प्रोटीन में, अमीनो एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में हर जगह दिखाया। अब बात करते हैं हम फास्फोरस की। तो फास्फोरस का जो रिलेटिव परसेंटेज है वो 6 है, ध्यान दीजिएगा, काफी कम हो गया नाइट्रोजन की तुलना में। फास्फोरस इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड एंड इन एटीपी, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए में हम देखते हैं फास्फोरिक एसिड। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं बच्चों तो देखते हैं न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, राइबोस दैट इज पेंटोज शुगर, देन नाइट्रोजनस बेसिस एंड देन फास्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 तो वहां पर फास्फोरस आ गया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नाम से ही पता चल रहा है आपको फास्फोरस है यहाँ पर। नाउ लेट अस डिस्कस चिल्ड्रन अबाउट पोटेशियम, थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज पोटेशियम, 25% इन प्लांट। ओके, देखिए रिलेटिव परसेंट इन प्लांट, नाइट्रोजन से सबका रिलेटिव कंसंट्रेशन अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन 100% है। तो पोटेशियम 25%, पोटेशियम इज प्रेजेंट इन कैटलिस्ट एंड इन आयन ट्रांसपोर्ट। देन वी शैल डिस्कस अबाउट कैल्शियम। कैल्शियम 12.5% रिलेटिव परसेंटेज इन प्लांट टू नाइट्रोजन। कैल्शियम इज मेल, आप जानते हैं अभी 11th क्लास में आपको ये रिलेटिव परसेंट नहीं लिखना है बच्चों, लेकिन मैं जानबूझकर डेलिबरेटली रिलेटिव परसेंटेज भी दे रहा हूं, क्योंकि ये स्लाइड आपके पास लैपटॉप में, मोबाइल में रहेगी, तो ये परसेंटेज आप नोट डाउन कर लेंगे, देन इट विल हेल्प आउट यू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परसेंटेज भी पूछता है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एलेबोरेटिंग दिस स्लाइड विद रिलेटिव परसेंट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट टू नाइट्रोजन। सो यू आर सीइंग द कैल्शियम। कैल्शियम बेसिकली प्रेजेंट इन द सेल वॉल कंपोनेंट। सेल वॉल के कंपोनेंट में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है बच्चों प्लांट्स के अंदर। Second, magnesium 8% relative percentage and part of chlorophyll. Magnesium is the part of chlorophyll, children, and in the presence of magnesium ion, chlorophyll just trap the sunlight. Now you are seeing the sulfur. Sulfur basically 3%. Sulfur is the part of amino acid cysteine. जब आप सिस्टीन अमीनो एसिड देखेंगे तो वहां पर आपको सल्फर दिखाई देगा, और भी अमीनो एसिड्स में सल्फर है बच्चों। So you can say that sulfur is the part of protein also, because you know that amino acids are the building block of protein. Okay, and iron, the most required micronutrient. Iron is the part of chlorophyll synthesis. Okay, 0.2%। जितने भी जीरोस वाले हैं बच्चों ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। Don't get any kind of confusion. These are required in traces. Okay, like copper 0.01%, component of enzyme. Manganese 0.1%. Manganese activates the enzyme. Zinc activates the enzyme. Boron cell wall component. Molybdenum involved in nitrogen fixation. And chlorine the photosynthesis reaction. So these are the function in plant you are seeing. And now we are going to discuss in detail about all the macronutrients। जैसा कि मैंने बताया बच्चों
जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, उनका भी, और उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के भी हम एब्जॉर्बल फॉर्म एज वेल एज देयर रोल इन प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मेटाबॉलिज्म, दैट वी शैल डिस्कस, गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट नाइट्रोजन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप जब नोट्स बनाने लगेंगे आप क्लास के बाद, तो ध्यान देंगे कि एब्जॉर्बल फॉर्म और उनका रोल, ये दोनों ही जरूर लिखना है, हर एक एलिमेंट का, हर एक मिनरल का। सो लेट अस स्टार्ट नाइट्रोजन। आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों 78% नाइट्रोजन है, सबसे अधिक नाइट्रोजन ही है, लेकिन वह प्लांट्स के किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, फ्री स्टेट में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जो कि एब्जॉर्बल फॉर्म नहीं होता है। You know that absorbable forms are ionic forms in fact. Through soil plants absorb. तो इसीलिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी होना जरूरी होता है बच्चों, सॉइल में और उसके बाद प्लांट्स में, और प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट से एनिमल में पहुंचता है, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन अमीनो एसिड का पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट है, इसीलिए इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एज वेल एज नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपने डीएनए और आरएनए में भी नाइट्रोजन को देखा है, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस। एंजाइम में प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम भी सभी प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, राइबोजाइम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एंजाइम है सभी प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं, और अमीनो एसिड नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का रोल हर जगह है बच्चों। सो एब्जॉर्ब फॉर्म नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड nitrite, nitrate, NO3, NO2, NO3, NO4, these are ionic forms in fact, and ammonium ion also. Except nitrogen fixing organism, plant obtain their nitrogen requirement from soluble nitrate in the soil. मैंने पहले ही बताया आपको। रोल, नाइट्रोजन is an essential constituent of protein, nucleic acid, vitamins and many other organic molecules such as chlorophyll. तो आप जितने भी बायोमोलिक्यूल देखेंगे, actually biomolecules are the organic complex molecules, okay, which are the polymers in fact. तो जहां पर भी पॉलीमर्स की बात आएगी, नाइट्रोजन आपको जरूर दिखाई देगा बच्चों। नाइट्रोजन also form a constitute of various hormones, coenzymes and ATP. ध्यान दीजिए, हार्मोन्स, कोएंजाइम्स एंड एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर भी नाइट्रोजन की जरूरत है। इसीलिए जब मैं पीछे अभी चार्ट दिखा रहा था तो फास्फोरस और पोटेशियम वाली लाइनिंग को भी मैंने नाइट्रोजन में इलेबोरेट किया, क्योंकि नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कोएंजाइम्स में भी है, हार्मोन्स में भी है, एटीपी में भी है, विटामिन में भी है, न्यूक्लिक एसिड में भी है, प्रोटीन में भी है, और अमीनो एसिड में भी है बच्चों। इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है नाइट्रोजन, तो जाहिर सी बात है इसकी डिफिशियंसी से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम्स, स्टंटेड ग्रोथ, अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी तो प्लांट का ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, और क्लोरोसिस होने से देखिए ये लिप्स पीली पड़ जाएंगी, आप डायग्राम में देख रहे हैं, या क्लोरोसिस हो चुका है और लिप्स पीली पड़ चुकी है, क्लोरोफिल इनका जल चुका है या खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए रिडक्शन इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग नहीं होगा बच्चों, रिड्यूस फ्लावरिंग, एक्सेसिव कलरिंग इन एप्पल एंड पीच एंड रिडक्शन इज इन फ्रूट साइज, फ्रूट का साइज रिड्यूस हो जाएगा और एक्सेसिव कलरिंग हो जाएगी एप्पल और पीच के केस में। चेंज इन द पिगमेंटेशन पैटर्न, ओके, पर्पल ड्यू टू एंथोसाइनिन, जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो पर्पल कलरिंग आने लगेगी, लीव्स का कलर यहाँ पर ग्रीनिश से चेंज होने लगेगा। दीज आर द सिम्टम्स of nitrogen deficiency, and see here all the essential nutrients nitrogen is required by plants in large amount, okay, the forms of absorption are nitrate, nitrite भी मैंने पीछे दिखाया, and ammonium ion भी देख रहे हैं आप, these are the absorbable form and functions important in the growth and development of vital plant tissue and cell। ध्यान दीजिएगा, important in the growth and development of vital plant tissue and cells। जितने भी प्लांट टिश्यू, वाइटल प्लांट सेल्स है, वाइटल प्लांट टिश्यू है, उनके डेवलपमेंट के लिए और प्लांट के ग्रोथ के लिए जो है नाइट्रोजन इसेंशियल होता है बच्चों। इट हेल्प्स टू होल्ड द जेनेटिक कोड इन द प्लांट न्यूट्रिएंट। ध्यान दीजिएगा, जब आप जेनेटिक कोड की बात करेंगे वहां नाइट्रोजनस बेसिस, एक्चुअली जेनेटिक कोड इज द ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। जब आप 12th क्लास में जेनेटिक्स पढ़ेंगे बच्चों, तब आप देखेंगे
कि जो जेनेटिक कोड या कोडॉन्स होते हैं वो पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस के ही ट्रिपलेट होते हैं। ओके, लाइक एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, एयूजी इज द फर्स्ट कोडॉन। इन 12th क्लास वी विल डिस्कस इन डिटेल कि ये फर्स्ट कोडॉन माना जाता है, स्टार्ट कोडॉन माना जाता है, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टार्ट कराता है, दैट इज एयूजी। मैं एक एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको नाइट्रोजन का प्रेजेंस वहां पर भी दिखाई दे। AUG that is adenine uracil guanine, AUG that is start codon। क्या कहेंगे बच्चों इसको? स्टार्ट कोडॉन। So you are seeing here that nitrogen helps to hold the genetic code in the plant nutrients and important in the growth and development of vital plant tissue and cells। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यह रोल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और अभी पीछे मैंने इसके डिफिशियंसी से भी बताया आपको कि नाइट्रोजन के डिफिशियंसी से स्टंटेड ग्रोथ, क्लोरोसिस, रिडक्शन इन फ्लावरिंग, excessive coloring and change in pigmentation pattern, so these are the deficiency symptom of nitrogen। और रोल आपने देखा, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल, हार्मोन्स, कोएंजाइम्स एंड करेंसी ऑफ एनर्जी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हर जगह आपने नाइट्रोजन को का अकरेंस देखा बच्चों, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। ओके, and children, let us discuss the second micronutrient, that is phosphorus। phosphorus basically phosphate आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बच्चों। और रोल देखिए जरा एक एक एलिमेंट का बच्चों, हर एक एलिमेंट का मैं आपको आयनिक फॉर्म, रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। आप आराम से समझिएगा, नोट्स बनाते समय एक एक एलिमेंट्स का अलग अलग नोट्स बनाइएगा बच्चों, दैट विल बी बेनिफिशियरी फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ half yearly as well as annual exam। So you are seeing here that phosphorus is being absorbed in the form of phosphate ion, and role you are seeing children that it is present in the plasma membrane, nucleic acid, nucleotides, coenzymes and organic molecules। It plays an important role in metabolic process such as photosynthesis, glycolysis, respiration and fatty acid सिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो भी होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन के समय आप देखेंगे ग्लाइकोलिसिस होगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस के समय में, रेस्पिरेशन के समय में और फैटी एसिड सिंथेसिस में, चूंकि आप जानते हैं फास्फोरस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का पार्ट है, हर जगह एटीपी की जरूरत है। फोटोसिंथेसिस में भी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फिर डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल, C4 साइकिल, हर जगह एटीपी देखेंगे। लाइट रिएक्शन में तो एटीपी बनता है बच्चों, लेकिन डार्क रिएक्शन में, एसिमिलेशन के समय में उस एटीपी का यूज देखेंगे आप। तो इस तरीके से हर एक प्लांट फिजियोलॉजी में आपको फास्फोरस भी नजर आएगा बच्चों। एंड डेफिशिएंसी सिम्टम देखिएगा, रिडक्शन इन ग्रोथ, प्रीमेच्योर लीफ फॉल, डेवलपमेंट ऑफ पर्पल एंथोसायनिन, जैसे पीछे भी दिखाया था मैंने नाइट्रोजन की कमी से, एंड डेड नेक्रोटिक एरियाज ऑन लीव्स, पेटियोल्स एंड फ्रूट्स, दैट इज सेड टू बी एज नेक्रोसिस। ध्यान दीजिए, अभी इससे पहले आपने देखा क्लोरोसिस और अब आ गया नेक्रोसिस, यानी लीव्स का पीला पड़ जाना, दैट इज क्लोरोसिस, और लीव्स का रिंकल्ड हो जाना, मुरझा जाना, that is necrosis। So there are two special phenomena related to mineral nutrition which are chlorosis and necrosis। अगर क्लोरोफिल समाप्त हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है और जिसकी वजह से लीव्स पीली पड़ गई है, तो that is said to be as क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस हो जाने के बाद जब लीव्स मुरझा जाएगी, टूट टूट कर गिरने लगेगी, रिंकल्ड हो जाएगी, पेटियोल्स या फ्रूट्स भी रिंकल्ड हो जाएंगे, तो दैट इज सेड टू बी एज नेक्रोटिक, and such areas are said to be as necrotic areas। So you can say that necrosis is the consequences of chlorosis। पहले क्लोरोसिस होगा और उसके बाद नेक्रोसिस हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, एक लीफ आपको पीली लीफ दिखाई दे रही है, यह क्लोरोसिस हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्रोसिस भी हो चुका है बच्चों। तो दीज आर द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ फास्फोरस। ओके, फास्फोरस के बाद हम लोग तीसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे, दैट इज पोटेशियम। As you see children that NPK, calcium, magnesium and sulfur। तो NPK that is nitrogen, phosphorus and potassium,
and then calcium, magnesium and sulfur. These six nutrients are just required by plants in large amount. That's why these nutrients are said to be as micronutrients. और अब हम लोग पोटेशियम की बात करने जा रहे हैं बच्चों. पोटेशियम इज एब्जॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन के प्लस. ये के प्लस यानी पोटेशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. मैंने आपको बताया है कि सभी मिनरल्स अपने आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं. रोल. Potassium is essential for protein synthesis, photosynthesis, respiration, and stomatal movement. That is opening and closing of stomata. वहां पर भी पोटेशियम आयन का रोल है. इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में देखेंगे आप, रेस्पिरेशन में और प्रोटीन के सिंथेसिस में पोटेशियम का रोल होता है बच्चों. एंड व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम? जैसे डेफिशिएंसी सिम्टम हम लोगों ने नाइट्रोजन का देखा, फास्फोरस का देखा. And now we are going to see the deficiency symptom of potassium. Okay, children, due to the deficiency of potassium, leaf tips curve downward, causes motile chlorosis, development of chlorosis at tip and margin of leaves. देखिए लीव्स के मार्जिन पर, किनारों पर और टिप पे यह क्लोरोसिस के डेवलप कर देता है, यानी क्लोरोफिल को रिड्यूस कर देता है. शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड एंड स्टंटेड ग्रोथ. जो इंटरनोड है बच्चों, दो नोड्स के बीच की दूरी वह कम हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है. एंड ऑटोमेटिकली द प्लांट ग्रोथ विल बी स्टंटेड. और प्लांट का ग्रोथ जो है रुक जाता है. यहाँ देख रहे हैं आप स्टंटेड ग्रोथ भी और क्लोरोसिस भी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ potassium. So my dear kids, we are seeing the deficiency symptoms also of the macronutrients. We have seen the nitrogen, phosphorus and potassium, and then next one is calcium. तो potassium और calcium देखिएगा आप यहाँ पर. potassium absorbed and K plus potassium ion needed in meristematic tissue division के समय में buds, leaves and root tips. And anion cation balance. देखिए ध्यान दीजिए, anion cation balance, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स. आप जानते हैं के प्लस जो है वह एनायन कैटायन बैलेंस में भी मदद करता है. Na प्लस के प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी इसका बहुत ज्यादा रोल है बच्चों. नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग में पोटेशियम आयन का रोल है. तो लेकिन हम लोग यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में इसके रोल की चर्चा कर रहे हैं. एंड सी हियर द नेक्स्ट वन, कैल्शियम आयन, essential for meristematic tissue, synthesis of cell wall, formation of mitotic spindle and metabolic activities. So my dear kids, now time is going to over. In today's class we have seen the critical concentration as well as just started the various minerals, their absorbable form, their role in plants and deficiency symptoms. We have seen just the role of nitrogen, phosphorus, potassium and calcium. Okay, अभी कैल्शियम स्टार्ट किया है. तो in the next class children we shall discuss the role of calcium, magnesium, sulfur and then all the micronutrients like iron, chlorine, boron, manganese, all the micronutrients. उनकी भी हम essentiality को देखेंगे, कहाँ कहाँ पर प्लांट्स के अंदर उनका रोल है, इसकी भी चर्चा करेंगे बच्चों हम कल के क्लास में, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. ओके, और जैसा कि आपने देखा नाइट्रोजन का रोल सबसे ज्यादा था, अलग अलग जगहों पर था. तो इसी चैप्टर में बच्चों आगे भी हम लोग नाइट्रोजन का फिक्सेशन देखेंगे, किस तरह से लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम के थ्रू, किस तरीके से लेग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का रोल हम देखेंगे एनारोबिक कंडीशन में. एंड देन वी शैल डिस्कस इलेबोरेट द नाइट्रोजन साइकिल. Okay, thank you very much.